Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. From Standard 8 English Medium, Unit 6, the chapter name is This is Geordie's Fawn. Okay? In this unit, I have completed the first part and the second part of the story. Okay? Now comes to the third part. I am going to tell you the story of the third part. So, in the third part, what happened? Let's see. After a while, Geordie came to the carcass of the doe. The fawn was not found nearby. He tried to look for the small hoof prints, but in vain. Then there was some movement directly in front of him. Geordie was overjoyed to see his fawn. It was shaky, but it didn't try to rise or run. Geordie laid his hands on the fawn's soft neck. See, take it. Geordie took the fawn. He was very happy to feel it. Geordie lifted the swan from the grass very softly. He feared that the sight of its mother's carcass might agitate the swan. So he avoided the clearing and went through the bushes. It was a difficult walk. He was carrying the fawn in his arm. See, it was a long walk. He reached the trail. Then he came to the road that could take him home. Now he stopped to rest. He put the fawn down. It bleated and looked at Geordie. Geordie was charmed. "I'll carry you after I get my breath," he said. His father had told him that a fawn would follow if it had first been carried. So he started slowly. The fawn didn't move, so he came back to pick him. He went ahead, carrying the fawn in his arms. He could not go very far. He was too tired. This time, however, the fawn followed him as he walked on. He allowed it to walk a little. Then he picked it up again. He reached at the gate of his home carrying the fawn. At the gate, Geordie had an idea. He would walk into his father's room with the fawn after him. But at the steps, the fawn would not come up. So, Geordie reached his father's bed with the fawn on him. Geordie showed his father the fawn. The father was glad that Geordie had found what he wanted. Geordie offered the milk to the fawn. The milk was in the gourd. The fawn could not drink it. Then Geordie dipped in his finger in the milk and thrust them into the fawn's soft mouth. See the picture. The fawn drank the milk greedily. Then he lowered his fingers into the gourd. The fawn drank from the gourd now.
started drinking from this bowl. So this is the story of the third unit, third part. I hope you understand it. So this third part also I am going to tell you in Hindi. So क्या होता है थर्ड पार्ट के अंदर कि सेकेंड पार्ट के अंदर तो मिलविल उसे छोड़कर चला जाता है फॉरेस्ट के अंदर, लेकिन थर्ड पार्ट में कुछ देर बाद जॉडी वहाँ आ गया जहाँ मृगी की लोथ पड़ी थी, यानी जो शिशु था उसकी मम्मी डोहे जहाँ मरी पड़ी थी वहाँ वो जॉडी आ गया। आसपास मृग शिशु कहीं नहीं था, जॉडी ने देखा तो कहीं पर नहीं था। उसने छोटे छोटे खुरों के निशान ढूंढने का असफल प्रयत्न किया। तभी ठीक उसके सामने की ओर कुछ हलचल हुई। अपने मृग शिशु को देखकर जॉडी खुशी से फूल उठा। वहां कांप रहा था पर उसने उठने या भागने का प्रयत्न नहीं किया। मृग शिशु की कोमल गर्दन पर जॉडी ने अपना हाथ रखा। उस अनुभूति से वह प्रसन्न हो गया। बड़े धीरे से जॉडी ने मृग शिशु को ग्रास से ऊपर उठाया। उसे डर था कि अपनी मां के कंकाल को देखकर कहीं मृग शिशु व्याकुल न हो उठे। इसीलिए खुले मैदान को छोड़कर वह झाड़ियों से होकर गुजरा। चलना कठिन था। वह मृग शिशु को अपनी बाहों में उठाए था। देखिए पिक्चर, बाहों में उठाए हुए था। लंबा रास्ता था। वह पगडंडी पर पहुंचा। फिर वह उस सड़क पर पहुंचा जो उसके घर की ओर जाती थी। अब वह आराम के लिए रुका। उसने मृग शिशु को नीचे उतार दिया और क्या करने लगा, वह मिमी आया और उसने जॉडी की ओर देखा। जॉडी मोहित हो गया। सांस ले लूं, फिर जॉडी ने बोला कि मैं सांस ले लूं, फिर मैं तुम्हें ले चलूंगा, ऐसा जॉडी ने कहा मृग शिशु को। उसे ऐसा कैसे पता चला कि उसके पिता ने कहा था कि यदि मृग शिशु को पहले उठाकर चलो तब वह फिर अपने आप पीछे चलने लगेगा, इसलिए वह धीरे धीरे चला। मृग शिशु नहीं हिला, इसलिए उसने क्या किया, जॉडी ने किया कि उसे उठाने वह वापस आया। फिर बाहों में मृग शिशु को उठाए वह आगे चल पड़ा। वह अधिक दूर न चल सका, वह बहुत थका हुआ था। पर इस बार जब जॉडी चला तब मृग शिशु उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूर उसने उसे चलने दिया। फिर जॉडी उसे दोबारा उठा लिया और मृग शिशु को उठाए वह अपने घर के द्वार पर पहुंच गया। द्वार पर जॉडी के मन में एक विचार आया। वह अपने पिता के कमरे में मृग शिशु को अपने पीछे चलाकर ले जाए, पर मृग शिशु सीढ़ियां नहीं चढ़ सका। इसीलिए उसने क्या किया, जॉडी ने मृग शिशु को गोदी में उठाए अपने पिता के बिस्तर के पास पहुंचा। जॉडी ने अपने पिता को मृग शिशु दिखाया। पिता यह देखकर प्रसन्न थे कि जॉडी जो चाहता था वह उसे मिल गया था। जॉडी ने मृग शिशु को दूध दिया। अब दूध कहाँ था, दूध तुम्बे में था, बाउल तुम्बे में था। मृग शिशु उसे नहीं पी सका। तो क्या किया, देखिए यहाँ पिक्चर है। मृग शिशु को बाउल दिया, तुम्बा, तो डायरेक्टली नहीं पी सका। तो जॉडी ने क्या किया कि जॉडी ने अपनी उंगली या जो अंगुलियां है वो दूध में डाल दी, यहाँ डाल दी, दूध के बाउल के अंदर डाल दी और उन्हें मृग शिशु के कोमल मुंह में डाला। देखिए पिक्चर यहाँ। मृग शिशु ने आतुरता से दूध पिया।
फिर उसने अपनी उंगलियां नीचे कर तुम्बे में डाली। अब मृग शिशु तुम्बे से पीने लगा। ठीक है, एक बार तो तुम्बे से डाल दिया उसके मुंह में, दूसरी बार धीरे धीरे वह सीख गया तुम्बे में से दूध पीना। कौन? मृग शिशु। तो ये स्टोरी थी थर्ड पार्ट की। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट ऑफ दिस लेसन। What is the lesson name? This is George's Farm. Thank you for listening me.